बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हम इंशाल्लाह अपना लेक्चर नंबर 12 स्टार्ट करने जा रहे हैं, विच इज़ ऑल अबाउट स्ट्रेटजीज इन एक्शन। इस लेक्चर के स्टार्ट में मैं आपको लेक्चर आउटलाइन भी प्रोवाइड कर रहा हूँ और जस्टिफिकेशन भी प्रोवाइड करूँगा कि हाउ अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक ऑफ स्ट्रेटजीज इन एक्शन हैज एंटर्ड इनटू पिक्चर एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम इनटू आवर स्टडी ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस। जैसा कि हमारे इन लेक्चर्स के स्टार्ट में और उनके इन बिटवीन काफ़ी मर्तबा मैंने आपको ये बताया कि फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द फिलोसफीज एंड द कॉन्सेप्ट्स ऑफ बिजनेस पॉलिसी we are taking help from the strategic management process for the execution of business policies concepts। और ये जो strategic management process है, in other words जो हमारे पास एक tool है business policy के concepts को implement करने का, ये strategic management process एक 3 stages का process है। And out of those 3 stages, the first stage of this process is available with the title of strategy formulation. Second stage is available with the title of strategy implementation. And the third and the final stage of this particular process is available with the title of strategy evaluation. Dear students, ये strategies in action आज के lecture number 12 में हमें पढ़ना क्यों ज़रूरी है? इसकी जस्टिफिकेशन, इसकी रिक्वायरमेंट ये है कि ये हमारी पहली स्टेज ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस को मैच्योर करने में हमारे लिए हेल्पफुल है। हमारी पहली स्टेज कहाँ मैच्योर हो रही है? स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन पे। एंड विच स्ट्रेटेजी इज अवेलेबल टू अस टू बी फॉर्मुलेटेड एंड फाइनली सेलेक्टेड बाय अस would be from among those few strategies which we will discuss inshallah in our this today's lecture, and rest of the strategies which we will be covering inshallah in our next upcoming lecture। हमारे इस लेक्चर की आउटलाइन में हम लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस करेंगे। वी वुड हैव बीन डिस्कसिंग टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजीज अवेलेबल टू वन ऑर्गेनाइजेशन, एंड आफ्टर दैट integration group of strategies available to an organization, and other category of the growth group strategies of the organization is available with the title of intensive strategies, diversification group of strategies. Then we would have been having a discussion on the second major category of the available strategies to an organization for strategic management process purposes, and that major second category of strategies is available with the defensive strategies. Then means for achieving strategies would be discussed among all of us inshallah in our next particular lecture। And as far as the lecture outline is concerned regarding this particular chapter of strategies in action, इसमें डियर स्टूडेंट्स हम माइकल पोर्टर्स ने जो कंट्रीब्यूट की हैं जेनेरिक स्ट्रेटजीज, उस पे भी एक डिटेल डिस्कशन करेंगे। मेरा ख्याल है कि माइकल पोर्टर की इन जेनेरिक स्ट्रेटजीज को आपने पहले भी डिफरेंट सब्जेक्ट्स में पढ़ा हुआ होगा। बिजनेस में जो बिजनेस या फंक्शनल स्ट्रेटजीज ऑर्गेनाइजेशंस के पास अवेलेबल हैं, दे हैव बीन जनरेटेड फ्रॉम दोज माइकल पोर्टर्स जेनेरिक स्ट्रेटजीज। अलोंग विद दैट, इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर ऑफ स्ट्रेटजीज इन एक्शन, hopefully in our next lecture we would also be inshallah discussing strategic management approaches in non-profit and governmental organizations,
we would be having some discussion on the principles and the applications of strategic management in comparatively small firms, and along with that we are now at a point where we could start our discussion on the available strategies in action. Strategy ये बहुत अहम वर्ड है. हमने कौन सी स्ट्रेटजी आज डिस्कस करनी है, उसकी मेजर गाइडलाइंस क्या होंगी, उसकी ज़रूरत एक ऑर्गेनाइजेशन को कब पड़ती है. लेकिन बिफोर डिस्कसिंग ऑल दीज डिफरेंट एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू वन पर्टिकुलर स्ट्रेटजी और वन सेट ऑफ स्ट्रेटजीज, यहाँ मैं आपको रिमाइंड कराना चाहूँगा कि इन आवर प्रीवियस लेक्चर्स I told you the meanings of this particular term of strategy, जो कि मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ. As per Oxford Dictionary of Business Terminology, dear students, strategy का मतलब होता है an action or a series of action, a set of actions which you execute to collect one of your desired objective. इस पर्टिकुलर चैप्टर ऑफ स्ट्रेटजीज इन एक्शन की जो सिग्निफिकेंस है डियर स्टूडेंट्स, इट हैज बीन गिवन इन दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट व्हिच सेज इवन इफ यू आर ऑन द राइट ट्रैक यू विल गेट रन ओवर इफ यू जस्ट सिट देयर. कि अगर आप राइट ट्रैक पे भी हैं, आप सही काम कर भी रहे हैं, लेकिन अगर आप वहां से आगे नहीं बढ़ रहे, अगर आप वहां बैठ गए हैं, तो somebody will definitely beat you easily, overrun you. So strategies का होना और उनको implement करना एक ऑर्गेनाइजेशन की लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के लिए इंतहाई अहम और ज़रूरी पहलू है डियर स्टूडेंट्स. This particular statement was given by Will Rogers, which justifies the significance and the importance of strategies. Strategies in action. Hundreds of companies today, दुनिया में बेशुमार कंपनीज काम कर रही हैं. बेशुमार फर्म्स डिफरेंट इंडस्ट्रीज में अपनी अपनी एफर्ट पुट करके अपने लिए वैल्यूएबल रेवेन्यू जनरेट कर रही हैं. And all these 100,000 firms embrace strategic planning. They involve themselves into strategic planning. All organizations consider scenario planning, or in other words this strategic planning, or in other words this industry analysis. They all engage themselves into this scenario planning because this provides them with a platform for the establishment of not only their long-term objectives, rather it also provides the organization with an objective assessment for the selection of strategies to be formulated and then implemented by those organizations for the achievement of their annual objectives and their long-term objectives. Reasoning of engaging into this strategic planning is the quest of the organization for higher revenues. जैसे कि मैं आपसे अभी अर्ज कर रहा था, तमाम ऑर्गेनाइजेशन चाहे वो किसी भी इंडस्ट्री से बिलोंग करती हों, व्हाई डू दे स्टे इन दैट बिजनेस वेयर दे फेस स्टिफ कंपटीशन, where their managers have to maintain strong nerves and have to involve them all the time in scenario planning, in industry analysis, because they actually want to earn highest possible revenues as the reward of their effort by being one entrepreneur of that particular industry. Another reason, quest for higher profits. आप अपने टोटल रेवेन्यू में से अपनी एक्सपेंडिचर्स निकाल के अपना प्रॉफिट मार्जिन मैक्सिमाइज करना चाहते हैं एज एन ऑर्गेनाइजेशन. दिस इज व्हाई यू स्टे इनटू दैट पर्टिकुलर बिजनेस, इनटू दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्री. एक्चुअली लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स. डियर स्टूडेंट्स, हमें ये स्ट्रेटजी किस लिए फार्मूलेट करनी होती है? हमें अपने लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स की अचीवमेंट के लिए एक कोर्स ऑफ एक्शन डिजाइन करना होता है.
जिसे हम फर्दर इम्प्लीमेंट करके अपने चांसेस को बढ़ा लेते हैं कि हम अपने लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स अचीव करेंगे। अब हम थोड़ी सी डिस्कशन स्ट्रेटजीज इन एक्शन पर जाने से पहले जिस मकसद के लिए हम इन स्ट्रेटजीज को एक्सरसाइज करते हैं, यानी कि लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स की अकॉम्प्लिशमेंट के लिए, उस पर थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स are the results expected from pursuing certain strategies, जो कि मैं अभी आपको बता रहा था कि कुछ स्ट्रेटजीज को एक्सरसाइज करने का, उनको परसू करने का, उनको एग्जीक्यूट करने का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आप अपने लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना चाहते हैं, आप अपने चांसेस को एनहांस करना चाहते हैं एज फार एज accomplishment of your long-term objectives as being an organization is concerned. Long-term objectives. सबसे पहले तो मैं आपको दोबारा बता देता हूं कि ये ऑब्जेक्टिव्स किस चीज का नाम है, और अगर इसके साथ हम लॉन्ग टर्म का वर्ड अटैच कर देते हैं तो व्हाट पर्टिकुलर आइडिया दिस पर्टिकुलर टोटल कंप्लीट टर्मिनोलॉजी कन्वेज टू अस। ऑब्जेक्टिव्स, टारगेट्स और गोल्स। मैंने आपको पहले भी बताया था, बिजनेस की स्टडी में, मैनेजमेंट की स्टडी में वी यूज देम एज एन ऑल्टरनेटिव टर्मिनोलॉजीज, और ये जो ऑल्टरनेटिव टर्मिनोलॉजीज के तौर पे यूज होती हैं, वर्ड्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स और टारगेट्स और गोल्स, दे कन्वे अस ओनली वन एंड द सेम मीनिंग्स, एंड दैट इज रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट, दैट a state in future which you want to achieve. It is going to be your objective, and if it is your long-term objective, the maturity time period of your that state in future would be about 3 years or more than 3 years. There would be not as such associated upper limit of your those long-term objectives, but usually organizations and individuals formulate their long-term objectives as the objectives of their next 5 years, objectives of maximum their next 10 years. So any objective which is beyond the time maturity line of 3 or more than 3 years, we usually consider it the long-term objective of that organization. And objectives, whether they are the long-term objectives of the organization, whether they are the intermediate objectives of the organization, or whether they are going to be the short-term or annual objectives of the organization, they must come up along with these few characteristics which have been shown to you in this particular slide, and I will try to explain all these characteristics one by one to you all, inshallah. The first characteristics of objectives should be that all of your objectives should be quantifiable. Any objective which is not quantifiable or stated in qualitative term may be a little vague objective for you. Objectives को हमेशा क्वांटिटेटिव मैनर में स्टेट करना चाहिए, और क्वांटिटेटिव मैनर में वो स्टेट किस तरह होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप बाटा शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, आपने अपने अगले 2 साल के ऑब्जेक्टिव स्टेट करने हैं, तो क्वांटिफिएबल मैनर में बीइंग बाटा आपके ऑब्जेक्टिव्स इस तरह स्टेट होंगे that I want to have a total sales raise of 6% in coming 2 years into the market of Pindi and Islamabad by being a Bata firm company. It means कि आपने बाटा फर्म के तौर पे, बाटा एज अ कंपनी के तौर पे अपना ऑब्जेक्टिव नेक्स्ट 2 इयर्स के लिए क्वांटिफाई कर दिया कि आपको 6% सेल्स वॉल्यूम में रेस चाहिए, 2 साल के अंदर चाहिए, और इस पर्टिकुलर टारगेट मार्केट से चाहिए। सो क्वांटिटेटिव करके अपने ऑब्जेक्टिव स्टेट किए जाते हैं एज फार एज इंडिविजुअल्स आर कंसर्न्ड और एज फार एज बिजनेस फर्म्स आर कंसर्न्ड।
Second characteristics which must be associated to the long-term objectives of individuals and to the long-term objectives of the organization should be in the form of measurability. आपके तमाम objectives को measurable होना चाहिए. Objectives of your organization must be realistic, कि जो वाकई आपके लिए अचीवेबल हों, आपके गिवन उस वक्त के प्रोफाइल को सामने रखते हुए रियलिस्टिक होने चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होने चाहिए टू ऑल दोज पीपल हु वुड गेट इन्वॉल्व at one or at another stage in helping you out being an organization for the achievement of your objectives. वो सब आपके उन long term objectives को clearly understand करें, क्योंकि आप तमाम की एक collective effort से वो phenomena develop होगा when you become able to achieve your those long-term objectives. So this characteristics of being understandable to all who are involved into the pursuance of those long-term objectives is very important. Dear students, आपके long-term objectives challenging होने चाहिए ताकि वो आपकी hidden स्किल पूल को भी पॉलिश करें और ऑटोमेटिकली मस्ट ब्रिंग योर दोज हिडन स्किल्स इनटू प्रैक्टिस बाय यू. जब तक आपका ऑब्जेक्टिव चैलेंजिंग नहीं होगा, आप अपनी तमाम सलाहियतों को बरूए कार नहीं ला सकते. देन हायरार्किकल, एक ऑर्गेनाइजेशन में आपके ऑब्जेक्टिव्स मस्ट बी गिवन एंड स्टेटेड कीपिंग इन व्यू द हायरार्किकल लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि स्ट्रेटेजिक गोल्स इस लेवल पे अचीव हो रही हैं, ये स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव टॉप मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन अचीव कर रही है. टेक्टिकल गोल्स वुड बी गिवन एट द हायरार्किकल लेवल ऑफ द मिडिल मैनेजमेंट ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, और आपके ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव्स वुड ऑलवेज बी अचीव्ड बाय द कंट्रीब्यूशन ऑफ योर फर्स्ट लेवल मैनेजमेंट. सो your long-term objectives must be stated in a hierarchical manner to obtainable. Next characteristics जो हमने ऊपर रियलिस्टिक डिस्कस किया था, obtainable आप उसी की एक्सटेंशन को कंसीडर कर लें. ऐसा ऑब्जेक्टिव which is going to be very difficult for you, near to impossibility. Dear students, don't design and don't finalize such objectives for yourself. जो आपके लिए हासिल करना आपके गिवन पोटेंशियल को सामने रखते हुए मुश्किल हो जाए. Don't design, don't finalize such objectives. Always go for the statement and the finalization of those objectives which are assumed and considered to be easily obtainable by you. Congruent होना चाहिए. And final and very very important something, all of your long-term objectives being an organization must be, rather should be associated with the timeline. आपने अपने ऑब्जेक्टिव्स को टाइमलाइन से एसोसिएट करना बहुत ज़रूरी है. फॉर एग्जांपल, जो मैंने आपको क्वांटिफिएबल के फैक्टर को जस्टिफाई करते हुए ये कहा था कि बाटा ने बीइंग अ कंपनी, बीइंग अ फर्म, अपना ऑब्जेक्टिव क्वांटिफिएबल मैनर में ये स्टेट किया है कि हमें अगले 2 साल में 6% सेल्स वॉल्यूम में रेज चाहिए इस पर्टिकुलर टारगेट मार्केट में. They have attached this objective of earning 6% raise into their total sales volume with the timeline of 2 years. So this aspect of attaching and linking your long-term objective is very very important with the tight deadlines, dear students. So after that, dear students, these long-term objectives are necessary for every and all organization at corporate level, at divisional level, and at functional levels. Along with that, dear students, managers and organizations should avoid few aspects in finalizing their objectives,
particularly long-term objectives, and out of those few aspects is managing by extrapolation, then managing by crisis, then managing by subjectives, and then managing by hope. These are the few aspects which, being an individual and being an organization, you must avoid, particularly while deciding your long-term objectives. So once you are done being an organization with your long-term objective, डियर स्टूडेंट्स, जब आपने अपने लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को स्टेट कर लिया, फाइनल कर लिया, तो नाउ व्हाट नेक्स्ट यू वुड हैव टू डू, आपने अब अपनी स्ट्रेटेजी को टेकअप करना है. आउट ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ दैट यू विल ट्राई टू अचीव योर ऑब्जेक्टिव्स. और जो हमने अपने आज के लेक्चर में और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में भी हम इसी टॉपिक पे होंगे, हमने आज उस ग्रुप ऑफ स्ट्रेटजीज को डिस्कस करना है जो ऑर्गेनाइजेशन के पास स्ट्रेटजीज का ग्रुप ऑफ एक्शन की फॉर्म में अवेलेबल होता है, जिसको हम वन बाय वन स्टडी करेंगे और फाइनली ऑर्गेनाइजेशन अवेयर हो जाएगी कि आउट ऑफ विच एंड हाउ मैनी स्ट्रेटजीज दे वुड हैव बीन चूजिंग देयर वन पर्टिकुलर सेट ऑफ स्ट्रेटजीज. इसमें सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि बिजनेस के हवाले से फंक्शनल स्ट्रेटजीज जो हैं, दे हैव बीन डिवाइडेड इनटू टू मेन कैटेगरीज. एक कैटेगरी को हम कहते हैं ग्रोथ ग्रुप ऑफ स्ट्रेटजीज, एंड द सेकंड कैटेगरी ऑफ द स्ट्रेटजीज इज अवेलेबल विद द डिफेंसिव ग्रुप ऑफ स्ट्रेटजीज टाइटल. सो हम ग्रोथ ग्रुप ऑफ स्ट्रेटजीज को डिस्कस करेंगे, ये एक कैटेगरी है, एंड देन वी विल बी डिस्कसिंग द सेकंड कैटेगरी ऑफ आवर स्ट्रेटजीज दैट इज अवेलेबल विद द टाइटल ऑफ डिफेंसिव ग्रुप ऑफ स्ट्रेटजीज. यहाँ एक और अहम बात भी मैं आपके गोश गुजार कर देता हूँ कि ऑर्गेनाइजेशंस रिमेन्स अवेलेबल विद द हायर नंबर ऑफ ग्रोथ ग्रुप ऑफ स्ट्रेटजीज, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये होता है कि वो अपनी इंडस्ट्री में बाय बीइंग अ फर्म ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ अर्न कर सके. सो हमारे पास ग्रोथ के मैनर्स में स्ट्रेटजीज ज्यादा अवेलेबल हैं, एंड आफ्टर दैट डिफेंसिव ग्रुप ऑफ स्ट्रेटजीज यूज्ड टू हैव कंपैरेटिवली लेसर नंबर ऑफ स्ट्रेटजीज. इन ग्रोथ ग्रुप ऑफ स्ट्रेटजीज में से जो पहला ग्रुप ऑफ स्ट्रेटजी है, उसमें हमारे पास वर्टिकल इंटीग्रेशन स्ट्रेटजीज हैं, और इन स्ट्रेटजीज में हमारे पास तीन पर्टिकुलर स्ट्रेटजीज आ जाती हैं. नंबर वन स्ट्रेटजी जो है वर्टिकल इंटीग्रेशन स्ट्रेटजीज की ग्रोथ कैटेगरी की, उसमें फॉरवर्ड इंटीग्रेशन इज अवेलेबल विद अस. Second is backward integration, and the third of this particular subcategory of growth group of strategies is available with the horizontal integration strategy. In strategies में dear students, vertical integration strategies allow us to address the issues related to distributors, related to suppliers, and related to the competitors of your organization. For example, in this forward integration strategy, what it tells us, being a business organization, it focuses on this main area which has been shown to you all in this particular slide. An organization seeks or try to develop or try to gain ownership or increase control over distributors or retailers of that firm. आसान अल्फाज में मैं आपको इसे उर्दू में बता देता हूँ कि फॉरवर्ड इंटीग्रेशन स्ट्रेटेजी एक ऐसी ग्रोथ स्ट्रेटेजी है जिसमें एक फर्म कोशिश करती है कि प्रेफरेबली वो अपना डिस्ट्रीब्यूशनल नेटवर्क और रिटेलर नेटवर्क या रिटेलिंग की चेन डेवलप कर ले. If it is not possible for that firm, then as a second choice, that organization try to increase its control over available private distributors and retailers. इसके साथ साथ
ये किस वक्त और किस सूरत में एक ऑर्गेनाइजेशन को करना होता है. Meaning to say is that in which particular conditions this forward integration strategy will become more meaningful for the organization. यानी कि किन हालात के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये पहलू ज़रूरी हो जाता है या बड़ा अट्रैक्टिव हो जाता है कि वो फॉरवर्ड इंटीग्रेशन स्ट्रेटजी को परसू करे. The first guideline for that is present distributors are expensive, unreliable or incapable of meeting firm's needs. All very simple, self-explanatory. यानी कि अगर by being a firm आपके present distributors आपके लिए बहुत expensive हैं, unreliable हैं या आपकी रिक्वायर्ड नीड्स को पूरा करने में इतने इफेक्टिव नहीं है, तब आपको क्या करना चाहिए? ट्राई टू परसू दिस फॉरवर्ड इंटीग्रेशन स्ट्रेटेजी. द सेकेंड गाइडलाइन फॉर द परसुएंस ऑफ दिस फॉरवर्ड इंटीग्रेशन स्ट्रेटेजी व्हेन अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी डिस्ट्रीब्यूटर्स इज लिमिटेड. जब आपके पर्टिकुलर बिजनेस में आपको फैसिलिटेट करने के लिए क्वालिटी डिस्ट्रीब्यूटर्स कम तादाद में अवेलेबल हैं, बट बिजनेस हैज बीन ग्रोइंग लाइक एनीथिंग, इंडस्ट्री हैज बीन शोइंग वेरी पॉजिटिव इंडिकेटर्स, यानी कि इसमें ग्रोथ का मार्जिन बहुत ज्यादा अवेलेबल है, उस सूरत में इट वुड बी एडवाइजेबल फॉर यू टू गो एंड परसू दिस ऑफ योर फॉरवर्ड इंटीग्रेशन स्ट्रेटेजी. Another guideline for this particular forward integration strategy to become more meaningful for you as far as its execution and application from your firm is concerned is given in the form that when a firm competes in an industry that is expected to grow at a high pace and aggressively. इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप किसी एक ऐसी इंडस्ट्री में compete कर रहे हैं जहां ग्रोथ मार्जिन आपके पास बाय बीइंग अ बिजनेस फर्म बहुत ज्यादा है, in that particular situation it is advisable to you to go and apply this your forward integration strategy, क्योंकि इंडस्ट्री की ग्रोथ के साथ साथ आप उसमें से अपना हिस्सा और मार्जिन लेके आप भी ग्रो करेंगे. When organization has both capital and human resources needed to manage new business of distribution, जब आपकी फर्म इस हद तक इस्टेब्लिश और मैच्योर हो चुकी है कि आपके पास नीडेड और रिक्वायर्ड फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी अवेलेबल हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज भी अवेलेबल हैं, then you better go for the application of this particular forward integration strategy. और उसकी एप्लीकेशन के थ्रू ये जो आपका नया सेटअप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगा, इट वुड बी सर्विंग योर ऑर्गेनाइजेशन to have an extended and extra business proposition at that particular point in time in the form of having this distributional network available to that firm. Another guideline, advantages of stable production are high. जब एक कंटिन्यूअस और स्टेबल प्रोडक्शन सेटअप होने के एडवांटेजेस आपके लिए बहुत ज्यादा नजर आ रहे होंगे, देन यू मस्ट गो फॉर द एप्लीकेशन ऑफ दिस स्ट्रेटेजी. Another guideline, present distributors have higher profit margin. जब आपके पास जो अवेलेबल प्राइवेट डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं हैं, वो एक्सपेंसिव हैं, उनका प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा है जो आपके टोटल प्रॉफिट मार्जिन को कम कर रहा है, देन यू मस्ट गो फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ योर ओन डिस्ट्रीब्यूशनल नेटवर्क डियर स्टूडेंट्स. आफ्टर दैट we would become available with the discussion on the second strategy of this particular growth group of strategy, which was and which is available to us in the form of vertical integration group of growth strategies. इस ग्रुप की जो सेकंड ग्रोथ स्ट्रेटेजी है ये हमारे पास अवेलेबल है विद द टाइटल ऑफ बैकवर्ड इंटीग्रेशन. इसमें हम क्या करते हैं? When an organization
is interested in establishing its own sources of raw material. और अगर ये उनके लिए पॉसिबल नहीं है, then what they better do is try to increase their controllability over private suppliers of the raw material. Like what I have been written for you in this particular slide, seeking ownership or increase control of a firm's supplier, ताकि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन की अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल को सर्टन कर सकें. जिस तरह हमने फॉरवर्ड इंटीग्रेशन स्ट्रेटेजी के लिए कुछ गाइडलाइंस डिस्कस की थी, इसी तरह इस बैकवर्ड इंटीग्रेशन स्ट्रेटेजी भी इन अवेलेबल गाइडलाइंस की सूरत में आपके लिए मीनिंगफुल है. और ये गाइडलाइंस क्या है, वी कैन डिस्कस एंड explain those guidelines one by one shown in this particular slide. When present suppliers are expensive, unreliable or incapable of meeting your needs as a firm, कि जब आपकी जो रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल है, वो जो प्रेजेंट सप्लायर आपको सप्लाई दे रहा है या रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है, अगर वो एक्सपेंसिव है या अदरवाइज ट्रस्टवर्दी नहीं है, आपकी जरूरत को पूरा नहीं कर पा रहा, उस सूरत में यू मस्ट गो फॉर द एप्लीकेशन ऑफ दिस बैकवर्ड इंटीग्रेशन स्ट्रेटेजी. सेकंड गाइडलाइन, number of suppliers is small and number of competitors is going to be huge. जब competitors बहुत ज़्यादा हैं लेकिन उनको facilitate करने के लिए number of suppliers कम हैं, यानी कि रॉ मटेरियल कम अवेलेबल है, हो सकता है आपको किसी भी स्टेज पे अपने प्रोडक्शन साइकिल को रोकना पड़ जाए क्योंकि आपके पास अवेलेबल रॉ मटेरियल की सप्लाई रुक गई है. इस सूरत में जब सप्लायर्स का नंबर कम है और कॉम्पिटिटर्स का नंबर ज़्यादा है इंडस्ट्री में, तो बेहतर है कि आप बैकवर्ड इंटीग्रेशन स्ट्रेटेजी को एग्जीक्यूट करें ताकि आपके पास अवेलेबल सोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल अपने हों. देन नेक्स्ट गाइडलाइन, हाई ग्रोथ इन इंडस्ट्री सेक्टर. जब भी आप किसी उस इंडस्ट्री में कॉम्पीट कर रही हैं जहां पे ग्रोथ का मार्जिन और स्पीड बहुत ज़्यादा है, डियर स्टूडेंट्स, इस सूरत में इट इज़ अगेन एडवाइजेबल टू प्रेफरेबली डेवलप योर ओन सोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल. इन अदर वर्ड्स, आपको बैकवर्ड इंटीग्रेशन स्ट्रेटेजी को अप्लाई कर देना चाहिए. एंड अदर गाइडलाइन, व्हेन फर्म हैज बोथ कैपिटल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज टू मैनेज न्यू बिजनेस. जब आप बैकवर्ड इंटीग्रेशन स्ट्रेटेजी अप्लाई कर देंगे तो आपके पास एक फुल फ्लेज एडिशनल और एक्स्ट्रा बिजनेस ऑफ रॉ मटेरियल सप्लायर का बन जाएगा. ये अगर आपके पास इन एक्सेस फाइनेंशियल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं एज अ फर्म, और जब भी आपके पास एक्सीलेंट कैपेबल ह्यूमन रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, तो यू मस्ट गो फॉर द एप्लीकेशन ऑफ दिस स्ट्रेटेजी, बिकॉज आपके वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज और आपके ह्यूमन रिसोर्सेज आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर देंगे जहां से आप बहुत कन्वीनियंटली इस नए बिजनेस को मैनेज कर लेंगे. व्हेन एडवांटेजेस ऑफ स्टेबल प्राइसेस आर इम्पोर्टेंट, कि अगर आपके पास अपना सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल होगा तो आपको स्टेबल प्राइस पे रॉ मटेरियल अवेलेबल हो रहा है. अगर ये उस इंडस्ट्री में ग्रो करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो यू मस्ट गो फॉर दैट पर्टिकुलर स्ट्रेटजीज एप्लीकेशन. Another guideline, when present suppliers have high profit margins, in that case you must go for the application of your backward integration strategy. Dear students, अगर आप फॉरवर्ड इंटीग्रेशन भी अप्लाई कर चुके हैं स्ट्रेटेजी एज बीइंग वन ऑर्गेनाइजेशन, उसके फॉलो अप में आप इतने स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन की तौर पे उभर चुकी हैं कि आपने बैकवर्ड इंटीग्रेशन स्ट्रेटेजी भी अप्लाई कर ली है, तो इट विल टेक यू टू द ट्रैक ऑफ थिंकिंग टू अप्लाई योर दिस हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन स्ट्रेटेजी.
सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन में एक ऑर्गेनाइजेशन का पर्सपेक्टिव या फोकस क्या होता है। Seeking ownership or increase control over your main competitors। जब आप अपने कॉम्पिटिटर्स को ही ओवरकम कर लेना चाहते हैं या अपने कॉम्पिटिटर्स पे अपनी कंट्रोलेबिलिटी बढ़ा लेना चाहते हैं, तो दिस इज हाउ यू एक्चुअली कंज्यूम द फ्रूटफुल रिजल्ट्स ऑफ योर हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन स्ट्रेटेजी। डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह हमने फॉरवर्ड इंटीग्रेशन स्ट्रेटेजी और बैकवर्ड इंटीग्रेशन स्ट्रेटेजी की गाइडलाइंस डिस्कस की थी, जिनकी प्रेजेंस मीनिंगफुल हो जाती है, सिनेरियो डेवलप करती है कि आप उन स्ट्रेटेजीज को फॉर्मुलेट करके इम्प्लीमेंट कर सकें, इसी तरह we are also available with the guidelines that in which particular situation going for horizontal integration strategy is more meaningful for you. Number one guideline: when firm can gain monopolistic characteristics without being challenged by federal government। कि जब आपको अपनी गवर्नमेंट की पॉलिसीज, लेजिस्लेशन इस बात से नहीं रोक रही, कोई ऐसे हर्डल्स और कोई ऐसे बैरियर्स नहीं है टू गो एंड टू अटेन द मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन, तब यू मस्ट अप्लाई दिस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी ऑफ हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। सेकंड गाइडलाइन: व्हेन यू कम्पीट्स इन अ ग्रोइंग इंडस्ट्री। आप ग्रोइंग इंडस्ट्री में compete कर रहे हैं और आप अपना शेयर एनहांस करना चाहते हैं, अपना टोटल सेल्स वॉल्यूम और मार्केट शेयर बढ़ाना चाहते हैं, तो यू मस्ट गो फॉर द एप्लीकेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन स्ट्रेटेजी। देन अनदर गाइडलाइन: व्हेन इंक्रीज्ड इकोनॉमीज ऑफ स्केल्स प्रोवाइड मेजर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। जैसे ही एज अ फर्म आप इकोनॉमीज ऑफ स्केल को अचीव कर लेंगे, तो आपकी ओवरऑल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अपने कॉम्पिटिटर्स पे बढ़ जाएगा। इस सूरत में भी यू मस्ट थिंक अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ दिस हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन स्ट्रेटेजी एज अ फर्म। व्हेन faltering due to lack of managerial expertise or need for political resources arises, you must think about the application of this horizontal integration strategy, dear students. After that, now we are going to discuss Michael Porter's generic strategies. जैसे कि मैंने अभी के लेक्चर में आपको शुरू में बताया था कि माइकल पोर्टर्स की जो जेनेरिक स्ट्रेटेजीज हैं, they have provided us with the generation of those functional or business strategies, out of which we have discussed first three strategies in the name of forward integration, backward integration and horizontal integration strategies. अभी हम कुछ नजर डाल लेते हैं। We try to understand the Michael Porter's generic strategies, and let me also tell you this very important aspect too, that these three Michael Porter's generic strategies are also known as the Michael Porter's parent strategies. आप इनको जेनेरिक स्ट्रेटेजीज के टाइटल से भी डिस्कस करते हैं और इनको पेरेंट स्ट्रेटेजीज के टाइटल से भी डिस्कस किया जाता है। These strategies are three in number. Number one is your cost leadership strategies, then differentiation strategies, and then in these Michael Porter's generic or parent strategies, we are also available with the focus strategies. Generic strategies, they are meant to pursued in conjunction with differentiation. जब भी आप अपनी कोई डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंसी डेवलप करना चाहते हैं एज बीइंग एन ऑर्गेनाइजेशन, आपके लिए ये डिफ्रेंसिएशन के लेवल को अटेन करने के लिए इंतहाई अहम है, इंतहाई सिग्निफिकेंट है। देन इकोनॉमीज और डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल, दिस वे or that way, this particular strategy would help you a lot. When capacity utilization is achieved by you
it would be a product of the application of those generic strategies, then linkages with suppliers and distributors. इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में भी your generic strategies provided by these particular Michael Porter's contribution would help you a lot under its first particular strategy of being cost leadership in your given industry. Then, dear students, low cost producer advantages would be there out of the application of those generic strategies. For example, market of many price sensitive buyers, कि आप एक ऐसी मार्केट में अपनी प्रोडक्ट को ऑफर कर रही हैं जहां प्राइस सेंसिटिव बायर्स की कई कैटेगरीज हैं. नंबर 2, few ways of achieving product differentiation. जब भी आपके पास product differentiation का मार्जिन कम है, जब भी standardized product ज़्यादा चल रही है, तो this phenomena would be helping you a lot in understanding the whole scenario and providing you with a meaningable and beneficial course of action. Buyers not sensitive to brand differences. Then, when large number of buyers with bargaining power would be there, in that case, these different generic strategies contributed by Michael Porter would be meaningful for the organization. Then, how would the differentiation strategies would be helping an organization in its industry? Differentiation strategies provides an organization with greater product flexibility, dear students, with greater compatibility. Another important factor, differentiation strategies would be providing you to attain the level of being lower cost firm in that industry. Improved services would also come into the picture out of the application of our differentiation strategies. Greater convenience, very important factor these days. If a firm want to enjoy the success on immediate and long-term basis, factor of convenience is very important as far as buying pattern of the target market is concerned these days. Then adding more features to your offering as compared to the offering of your competitor would be applied and collected through the application of the differentiation strategies. Differentiation strategies, dear students, also allows firms to charge higher prices to their competitors, which will be raising their overall profit margin. It helps the firm gain customer loyalty. Along with that, dear students, if we discuss the output of the focus strategies from the group of Michael Porter's generic strategies, focus strategy provides industry segment of sufficient size. आप फोकस करते हैं अपनी किसी टारगेट मार्केट पे. बाय बीइंग अ फर्म आप अपनी सेगमेंटेड मार्केट पे फोकस करते हैं. अगर आप एक किसी बहुत बड़े कॉम्पिटिटर को उसकी टोटल नेशनल एंड इंटरनेशनल मार्केट में compete नहीं कर सकते, then the right way and the right approach available to you to even still by being the main competitor of that biggest firm to select your segmented target market. And if you focus on your segmented market, it helps you and provides you with very good growth potential, dear students, and not crucial to success of major competitors. इसके साथ साथ डियर स्टूडेंट्स, जेनेरिक स्ट्रेटजीज में जब भी हम फोकस स्ट्रेटजीज पे अपना फोकस सेट करते हैं, इट प्रोवाइड्स यू विद द कंज्यूमर्स विच हैव your distinctive preferences for your particular product. Rival firms not attempting to specialize in the same target segment. Very very important. अगर आपने एक सेगमेंट में अपने लिए लॉयल कस्टमर्स को पैदा कर लिया, लॉयल कस्टमर्स का एक्सटेंडेड पूल इफ इज अवेलेबल टू यू,
Even in that situation, your main rival firm would not like to enter into that particular segment, and you become the king of that particular segmented target market. And along with that, dear students, we would be now moving to our second major category of growth group of strategies, which is available with the title of intensive strategies. Few experts of strategic management also refers these intensive strategies as aggressive strategies too. इस पर्टिकुलर ग्रोथ ग्रुप ऑफ स्ट्रेटजीज में भी हमारे पास डियर स्टूडेंट्स 3 स्ट्रेटजीज अवेलेबल होती हैं, विच आर नेमली मार्केट पेनिट्रेशन. Market development is the second strategy of this intensive group of strategies, and the final particular strategy of this particular category is available with the title of product development strategy. इसमें इंटेंसिव स्ट्रेटजीज की पहले हम नेचर को इस एक स्टेटमेंट में डिस्कस कर लेते हैं. इंटेंसिव स्ट्रेटजीज रिक्वायर इंटेंसिव एफर्ट्स, aggressive efforts to improve a firm's competitive position with existing products. जब एक गिवन टारगेट मार्केट में एज अ फर्म आप अपनी एग्जिस्टिंग पोजीशन को और इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो यू बिकम अवेलेबल विद द चॉइस ऑफ गोइंग एंड परसुइंग योर दोज इंटेंसिव स्ट्रेटजीज. इसमें हमारे पास सबसे पहले मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रेटेजी अवेलेबल है, विच प्रोवाइड्स अस विद दिस कॉन्सेप्ट दैट व्हेनेवर अ फर्म सीकिंग इंक्रीज्ड मार्केट शेयर for present products or services in present markets through greater marketing effort. कि जब भी आप अपनी existing market में रहते हुए existing product and services mix को सामने रखते हुए अपना market share बढ़ाना चाहते हैं, तो you are available with the market penetration strategy. ये किस सूरत में हमारे लिए मीनिंगफुल है, इसके लिए हमारे पास क्या पर्टिकुलर आइडिया अवेलेबल है इन द फॉर्म ऑफ द गाइडलाइंस व्हेन दिस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी ऑफ मार्केट पेनिट्रेशन विल बिकम मोर मीनिंगफुल फॉर यू. इसमें से डियर स्टूडेंट्स पहली गाइडलाइन ये है कि करंट मार्केट्स नॉट सैचुरेटेड. एग्जिस्टिंग मार्केट जहां पे आप अपनी प्रोडक्ट करंटली ऑफर कर रहे हैं अभी मैच्योर या सैचुरेटेड नहीं हुई, इसमें स्टिल ग्रोथ मार्जिन अवेलेबल है, तब आप इसी पर्टिकुलर मार्केट में अपनी एफर्ट्स को और एक्सटेंसिव कर देते हैं और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट मिक्स को सामने रखते हुए यू ट्राई टू रेज योर ओवरऑल सेल्स वॉल्यूम. व्हेन यूजेज रेट ऑफ प्रेजेंट कस्टमर्स can be increased significantly. When in existing market, keeping in consideration your existing customers, जब आप ये समझते हैं कि इनका कंजम्पशन रेट को बढ़ाया जा सकता है, तो you go for this market penetration strategy. Third guideline, market shares of competitors declining while total industry sale is increasing. कि इंडस्ट्री तो ग्रो कर रही है लेकिन आपका जो कॉम्पिटिटर है, मेन कॉम्पिटिटर जो है, उसका सेल्स वॉल्यूम डिक्लाइन फेस कर रहा है. इस सूरत में भी आपको मार्केट पेनिट्रेशन यानी कि एक्सटेंसिव मार्केटिंग एफर्ट उसी मार्केट में अप्लाई करनी चाहिए ताकि आपका सेल्स वॉल्यूम बढ़ जाए. व्हेन इंक्रीज्ड इकोनॉमीज ऑफ स्केल प्रोवाइड्स यू विद द मेजर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, उस सूरत में भी डियर स्टूडेंट्स दिस मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रेटेजी विल बिकम वेरी मच मीनिंगफुल टू दैट पर्टिकुलर फर्म. इसके बाद हमारे पास इस पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ स्ट्रेटेजीज में सेकंड स्ट्रेटेजी इज अवेलेबल विद द टाइटल ऑफ मार्केट डेवलपमेंट. इस मार्केट डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी में क्या कॉन्सेप्ट है, इसका फोकस किस चीज पे होता है, ये हम डिस्कस कर लेते हैं. When introducing present products or services into new geographic areas, आप अपनी existing product mix को, services को
एक नए टारगेट या मार्केट या नए जियोग्राफिक मार्केट में ऑफर करना शुरू कर देती हैं तो वी रेफर इट एज योर मार्केट डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी। इसकी भी डियर स्टूडेंट्स कुछ गाइडलाइंस होती हैं। Naturally, the first guideline for the pursuance of this market development strategy is available to you in the form of when new channels of distribution that are reliable, inexpensive and of good quality। कि जब भी आपके पास डिस्ट्रीब्यूशनल नेटवर्क अवेलेबल है, वो रिलायबल है, वो इनएक्सपेंसिव है, तो उस सूरत में आपको मार्केट डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी करनी चाहिए। यहाँ लेट मी कोट यू एन एग्जांपल। अ फ्यू इयर्स अगो, जब कुछ साल पहले मोटरवे बनी थी इन बिटवीन लाहौर एंड इस्लामाबाद, तो मोटरवे की फार्म में एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूशनल चैनल यह रूट अवेलेबल हो गया था लाहौर की फर्म्स को इस्लामाबाद में अपनी आउटलेट्स ओपन करने के लिए और इस्लामाबाद की फर्म्स को लाहौर की मार्केट में एंट्री के लिए। तो इस सूरत में जब आपके पास डिस्ट्रीब्यूशनल नेटवर्क या इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, डिस्ट्रीब्यूटर्स आर रिलायबल, इनएक्सपेंसिव, उस सूरत में यू मस्ट गो फॉर द मार्केट डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी। सेकेंड गाइडलाइन, when firm is very successful at what it does, जो काम आप एक मार्केट में कर रहे हैं since centuries, since extended time period, and you have appeared and concluded yourself in that market as a very successful organization, उस सूरत में ये एक बहुत बड़ी गारंटी है कि अगर आप अपनी इस ऑफरिंग को एक नए जियोग्राफिकल एरिया में उठा के लेके जाएंगे तो वहां भी सक्सेस आपको वेलकम करेगी। थर्ड गाइडलाइन, व्हेन अनटैप्ड और अनसैचुरेटेड मार्केट्स आर देयर, you must go for this market development strategy. The other guideline, when capital and human resources necessary to manage expanded operations, अगर आपके पास ये सूरत हाल अवेलेबल है कि आप अपनी फर्म की एक्सपैंडेड ऑपरेशंस को कवर और मैनेज करने के लिए एक अच्छी फाइनेंशियल और ह्यूमन रिसोर्सेज की ब्रैकेट में अवेलेबल हैं, तो यू मस्ट गो फॉर दिस। व्हेन एक्सेस प्रोडक्शन कैपेसिटी इज अवेलेबल टू यू इन योर फर्म, आप इजीली मार्केट डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी को परसू कर सकते हैं। व्हेन बेसिक इंडस्ट्री रैपिडली बिकमिंग ग्लोबल, यानी कि आपकी इंडस्ट्री में जो आप प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं उसकी मार्केट अब नेशनल बाउंड्रीज से निकल के इंटरनेशनल मार्केट में आपकी प्रोडक्ट की डिमांड है। In that particular situation, you must go for this market development strategy, dear students. Along with that, हमारे पास इस पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ ग्रोथ स्ट्रेटेजी की जो तीसरी स्ट्रेटेजी है, this is available with the title of product development strategy, and what it tells us, seeking increased sale by improving present products or services or developing new ones। कि जब भी एक ऑर्गेनाइजेशन इंक्रीज्ड अमाउंट में अपना टोटल सेल्स वॉल्यूम देखना चाहती है तो उस सूरत में इस फर्म को प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी को परसू करना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी के लिए भी ऑर्गेनाइजेशंस के पास इंडस्ट्री में अगर ये गिवन गाइडलाइंस और सिचुएशन अवेलेबल होगी तो एप्लीकेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी विल बिकम मोर मीनिंगफुल एंड बेनिफिशियल फॉर दैट ऑर्गेनाइजेशन। इसमें पहली गाइडलाइन क्या है? प्रोडक्ट्स इन मैच्योरिटी स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल। अगर प्रोडक्ट अपने लाइफ साइकिल के मैच्योरिटी स्टेज पे पहुंच चुकी है या पहुंचने वाली है, देन यू मस्ट गो टू अप्लाई दिस प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी। आपको नई प्रोडक्ट को लेके आना होगा क्योंकि आपकी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट जो है वो मैच्योरिटी की स्टेज पे अपने लाइफ साइकिल में पहुंच चुकी है। सेकंड गाइडलाइन,
competes in an industry characterized by rapid technological developments. जब भी आपकी इंडस्ट्री में रैपिड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हो रही हैं, आपको प्रोडक्ट डेवलपमेंट की स्ट्रेटजी को परसू करना इंतहाई मीनिंगफुल हो जाता है. Another guideline, dear students, when major competitors offer better quality products at comparable prices, in this particular situation, you must go for the application of your this product development strategy. When you compete in high growth industry, उस हाई ग्रोथ इंडस्ट्री में से अपना शेयर एज बीइंग अ फर्म कलेक्ट करने के लिए यू मस्ट परसू दिस प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रेटजी. एंड व्हेन another guideline, strong research and development capabilities are available to your firm. आप अपनी इस रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कैपेबिलिटीज को इस्तेमाल करते हुए अपने लिए बहुत आसानी से नई प्रोडक्ट्स डिजाइन करके टारगेट मार्केट में ऑफर कर सकते हैं, which would be serving your basic cause of staying and sustaining in that particular industry. So dear students, our next group of growth strategies is available with the title of diversification strategies. In this diversification group of strategies, we are again available with 3 growth strategies, namely they are available with the title of concentric diversification, then conglomerate diversification, and then horizontal diversification strategy is available in this particular growth group of strategies. Now we will discuss one by one about the nature of these diversification strategies. Diversification strategies are meant to make you becoming less popular as organizations are finding it more difficult to manage diverse business activities. ये इंतहाई डिफिकल्ट होता जा रहा है कि आप अपने डाइवर्स पोर्टफोलियो और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को मैनेज कर सकें. डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट पर्टिकुलर डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी इज अवेलेबल विद द टाइटल ऑफ कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन. इसमें क्या होता है, इसकी नेचर क्या है, ये बहुत सिंपल है. एडिंग न्यू बट रिलेटेड प्रोडक्ट्स और सर्विसेज. आप नई प्रोडक्ट्स तो ऐड कर रही हैं बट अपनी प्रीवियस ऑफरिंग से रिलेटेड प्रोडक्ट्स ही ऐड कर रही हैं. अपनी प्रीवियस प्रोडक्ट के बारे में आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी अवेलेबल है, आपके पास टेक्नोलॉजिकल एडवांस्ड टूल एंड मेथड्स एंड मेथड्स एंड प्रोसीजर्स भी अवेलेबल हैं. उन्हीं मेथड्स को, उन्हीं टूल्स को, उन्हीं मेथड्स को यूज करके यू वुड हैव बीन डेवलपिंग अ न्यू प्रोडक्ट बट रिलेटेड टू योर प्रीवियस वन. This concentric diversification strategy will become more meaningful if these given guidelines would be available into your target market. जिसमें से पहली गाइडलाइन ये है, डियर स्टूडेंट्स, whenever you compete in no or slow growth industries, you are advised to go for the concentric diversification strategy. कि जब आप एक ऐसी इंडस्ट्री में compete कर रहे थे जिसमें या तो ग्रोथ नजर ही नहीं आ रही या अगर है तो बड़े स्लो पेस पे है, उस सूरत में आपको क्या करना चाहिए कि आपको डाइवर्सिफाई कर जाना चाहिए. आपको कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन अप्लाई कर देनी चाहिए, नई प्रोडक्ट्स ऑफरिंग करनी चाहिए, लेकिन कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन में रिलेटेड टू योर प्रीवियस ऑफरिंग आप प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को ऑफर करती हैं. अनदर गाइडलाइन, व्हेन एडिंग न्यू एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स इंक्रीजेस सेल्स ऑफ करंट प्रोडक्ट्स. कि जब नई प्रोडक्ट को, रिलेटेड प्रोडक्ट को अपने प्रोडक्ट मिक्स में ऐड करने से आपकी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स को भी पुश मिले, तो उस सूरत में यू मस्ट गो फॉर दिस कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटेजी. अनदर गाइडलाइन, व्हेन न्यू एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स offered at competitive prices
जब आपको प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस का एडवांटेज मिल जाए इस सूरत हाल में, तो आपका प्रॉफिट मार्जिन एज बीइंग एन ऑर्गेनाइजेशन बढ़ जाता है. In that particular situation, you are again advised to go for the concentric diversification strategy. And other guideline, dear students, when current products are in decline stage of the product life cycle, ये शायद हम पहले ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी आपकी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स जो हैं वो अपने लाइफ साइकिल की मेच्योरिटी स्टेज पे पहुंची हुई हैं, देन इट विल बिकम नेचुरली वेरी वेरी ऑब्वियस चॉइस फॉर यू to go for the concentric diversification strategy, meaning to say is that add new and related products in that particular situation. And when you are luckily available with the strong management team, आपके पास जो ह्यूमन रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वो बड़े स्किल्ड हैं, वो बड़े एक्सपोयर्ड हैं, वो टेक्नोलॉजिकली भी एडवांस हैं, वो सिनेरियो प्लानिंग भी बहुत अच्छी करती हैं. इन दैट सिचुएशन यू आर एडवाइज्ड टू परस्यू योर दिस कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटेजी. डियर स्टूडेंट्स, हमारी जो नेक्स्ट डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटेजी है, इट इज अवेलेबल विद द कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटेजी एंड इट टेल्स अस एडिंग न्यू अनरिलेटेड प्रोडक्ट्स और सर्विसेज. कि आप प्रोडक्ट्स तो नहीं ऐड कर रहे हैं बट आपकी प्रीवियस ऑफरिंग से अनरिलेटेड प्रोडक्ट्स आप ऑफर कर रही हैं. ये स्ट्रेटेजी किस सूरत हाल में हमारे लिए मीनिंगफुल होती है? ये विच गाइडलाइंस आर अवेलेबल टू यू to pursue this particular strategy? Number one guideline is declining annual sales and profits. जब as a firm, as an organization, आपकी एनुअल रिपोर्ट्स आपका डिक्लाइन शो कर रही हैं आपके सेल्स वॉल्यूम में, then you must go for this conglomerate diversification strategy. The second guideline, capital and managerial talent to compete successfully in a new industry. In that situation, you are again advised to go for the conglomerate diversification strategy. Third guideline, when financial synergy between the acquired and acquiring firms, you must go for the conglomerate diversification strategy. And when existing markets for present products are already saturated, इस सूरत हाल में भी you are advised to go pursue your this particular conglomerate diversification strategy, dear students. Along with that, we are having another diversification strategy available with the title of horizontal diversification strategy, which states adding new unrelated products or services for present customers. कि आप नई प्रोडक्ट तो ऐड कर रही हैं जो कि अनरिलेटेड है आपकी प्रीवियस ऑफरिंग से, लेकिन एट द सेम टाइम ये आपके प्रेजेंट कस्टमर्स के लिए ही है. इसके लिए भी, इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी के लिए भी हमारे पास कुछ गाइडलाइंस अवेलेबल हैं विच वी कुड डिस्कस वन बाय वन. नंबर वन, for this particular horizontal diversification strategy, the guideline says revenues from current products and services would increase significantly by adding the new unrelated products. जब आप ये समझते हैं कि नई बट अनरिलेटेड प्रोडक्ट की ऑफरिंग से मेरे टोटल रेवेन्यू पे एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट आएगा, देन यू मस्ट गो फॉर दैट. When highly competitive and or no growth industry with low margins and returns is there existing at that time, you must go for this horizontal diversification strategy. When present distribution channels can be used to market new products to current customers, जब जो आपका ऑलरेडी अवेलेबल डिस्ट्रीब्यूशनल नेटवर्क है वो नई और अनरिलेटेड प्रोडक्ट्स को आपके कस्टमर तक पहुंचाने में मददगार हो सकता है, देन यू मस्ट थिंक ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ दिस स्ट्रेटेजी.
And when new products have counter-cyclical sales patterns compared to existing products, you are again advised to think about pursuing and for the application of this horizontal diversification growth group of strategy. Dear students, इसके साथ ही आज हमने अपनी डिस्कशन कंप्लीट कर ली ग्रोथ ग्रुप ऑफ स्ट्रेटजीज पे। मैं इसमें अब आपको ये बात इस तरह समराइज कर देता हूं कि हमारे पास ग्रोथ ग्रुप ऑफ स्ट्रेटजीज में टोटल 9 स्ट्रेटजीज अवेलेबल हैं और ये 9 स्ट्रेटजीज जो हमारे पास अवेलेबल हैं ये हमें माइकल पोर्टर्स की जेनेरिक या पेरेंट स्ट्रेटजीज की एप्लीकेशंस की फॉर्म में अवेलेबल हैं। हम पहले दोबारा इस पे बात कर लेते हैं कि माइकल पोर्टर की जेनेरिक स्ट्रेटजीज कौन कौन सी हैं। इन माइकल पोर्टर्स की जेनेरिक स्ट्रेटजीज को हम पेरेंट स्ट्रेटजीज भी कहते हैं, विच आर 3 इन नंबर। Number 1, cost leadership strategy. Number 2, differentiation strategy. And number 3, as far as Michael Porter's generic strategies are concerned, is available with the title of focus strategies. इन 3 कॉन्सेप्ट्स की एप्लीकेशन के लिए हमारे पास बिजनेस या फंक्शनल स्ट्रेटजीज अवेलेबल हैं। इन बिजनेस या फंक्शनल स्ट्रेटजीज को वी हैव डिवाइडेड इनटू 2 मेन कैटेगरीज। द फर्स्ट कैटेगरी इज अवेलेबल विद द ग्रोथ ग्रुप ऑफ स्ट्रेटजीज एंड द सेकंड कैटेगरी इज अवेलेबल विद द टाइटल ऑफ डिफेंसिव ग्रुप ऑफ स्ट्रेटजीज। ग्रोथ ग्रुप ऑफ स्ट्रेटजीज में हमारे पास टोटल 9 स्ट्रेटजीज अवेलेबल हैं जिनको हमने 3 सब कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। पहला हमारे पास जो सब कैटेगरी है वो हमारे पास वर्टिकल इंटीग्रेशन स्ट्रेटजी के टाइटल से अवेलेबल थी, जिसमें हमने डिस्कस की 3 पर्टिकुलर स्ट्रेटजीज, नेमली फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, बैकवर्ड इंटीग्रेशन एंड हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। लेट मी रिमाइंड यू डियर स्टूडेंट्स, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन स्ट्रेटजी में हमारा फोकस डिस्ट्रीब्यूटर पे होता है। हमारी चॉइस ये होती है कि प्रेफरेबली हम बीइंग एन ऑर्गेनाइजेशन या तो अपना डिस्ट्रीब्यूशनल नेटवर्क इस्टेब्लिश कर लें या अदरवाइज जो प्राइवेट डिस्ट्रीब्यूटर है उस पे हमारी कंट्रोलेबिलिटी एनहांस हो जाए। इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी यानी कि फॉरवर्ड इंटीग्रेशन के लिए कुछ गाइडलाइंस भी हमने डिस्कस कर ली। इस ग्रुप में सेकंड स्ट्रेटजी हमारे पास अवेलेबल थी विद द टाइटल ऑफ बैकवर्ड इंटीग्रेशन स्ट्रेटजी। इन दैट बैकवर्ड इंटीग्रेशन स्ट्रेटजीज वी रिमेन्ड फोकस्ड ऑन मेकिंग इट अवेलेबल to our organization as far as the issue of the raw material is concerned. So this backward integration strategy actually tells us कि preferably as an organization आप अपने sources of raw material develop कर लें। अगर आपके पास ये पॉसिबल नहीं है उस वक्त ड्यू टू एनी फाइनेंशियल और ह्यूमन रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स, it is advisable to you to try increase your controllability over private available supplies of the raw material. इस ग्रुप की तीसरी और आखिरी स्ट्रेटजी हमारे पास अवेलेबल है हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन के टाइटल से, in which you try to seek the ownership of even your main competitor, or in other words you try to increase your controllability even on your main rival firms. Along with this, dear students, we have discussed the second major subcategory of our growth group of strategies, and that second particular group of subcategory of growth strategies was available with the extensive group of strategies. मैंने उस वक्त आपको ये बताया था कि ये जो एक्सटेंसिव ग्रुप ऑफ ग्रोथ स्ट्रेटजीज है इनको चंद एक्सपर्ट्स ऑफ मैनेजमेंट एग्रेसिव ग्रुप ऑफ ग्रोथ स्ट्रेटजीज के टाइटल से भी जानते हैं। इन दिस स्ट्रेटजी वी वर अवेलेबल विद द 3 पर्टिकुलर स्ट्रेटजीज,
जिसमें सबसे पहले हमारे पास मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रेटजी थी, सेकंड हमारे पास मार्केट डेवलपमेंट स्ट्रेटजी थी, और थर्ड और फाइनल हमारे पास प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रेटजी थी। डियर स्टूडेंट्स, मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रेटजी में एक फर्म, एक ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट मिक्स को एग्जिस्टिंग मार्केट में ही ऑफर करती है, बट विद एक्सटेंडेड मार्केटिंग एफर्ट, ताकि उसी एग्जिस्टिंग मार्केट में उसी ऑफरिंग ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के साथ वो अपना सेल्स वॉल्यूम बढ़ा सके। मार्केट डेवलपमेंट जो इस पर्टिकुलर कैटेगरी की सेकंड स्ट्रेटेजी है, in which we have discussed this phenomena that an organization start offering its existing products and services into new geographical areas whom it was not serving before। जब आप अपनी प्रेजेंट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को प्रेजेंट मार्केट के साथ साथ एक नई मार्केट या नए जियोग्राफिकल एरिया में भी ऑफर करना शुरू कर देते हैं, तो डियर स्टूडेंट्स वी कॉल इट एज अ मार्केट डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी। इस पर्टिकुलर ग्रुप की, यानी कि एक्सटेंसिव ग्रुप ऑफ स्ट्रेटेजी की तीसरी स्ट्रेटेजी हमारे पास अवेलेबल है प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी के टाइटल से। इसमें एक फर्म ये करती है कि अपनी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स जो हैं उसमें वैल्यू एडिशन करती है, इवन नई प्रोडक्ट ऑफर करती है टू इट्स एग्जिस्टिंग कस्टमर्स और टू इट्स एग्जिस्टिंग टारगेट मार्केट, ताकि अगर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स की मार्केट सैचुरेट या मैच्योर हो चुकी है तो वो नई प्रोडक्ट की ऑफरिंग के साथ अपना शेयर कंटिन्यूअस बेसिस पे उस मार्केट में ना खाली मेंटेन कर सकें बल्कि इसको और एनहांस कर सकें। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने ग्रोथ ग्रुप ऑफ स्ट्रेटजीज में तीसरा ग्रुप ऑफ जो ग्रोथ स्ट्रेटजीज है वो डिस्कस किया था विद द टाइटल ऑफ डाइवर्सिफिकेशन ग्रुप ऑफ स्ट्रेटजीज। इस पर्टिकुलर सब कैटेगरी ऑफ ग्रोथ स्ट्रेटजीज में वी वर अवेलेबल विद द थ्री स्ट्रेटजीज। नंबर 1 हमारे पास कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी थी। इस कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन में एक फर्म नई प्रोडक्ट्स तो ऐड करती है बट रिलेटेड टू इट्स एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स वो होती हैं, वो ऑल टुगेदर कोई नई डिफरेंट मार्केट में या नई डिफरेंट प्रोडक्ट की ऑफरिंग में नहीं चली जाती। टेक द एग्जांपल ऑफ गोरमे बेकर्स। गोरमे बेकर्स अ वेल नोन बेकर्स इन पाकिस्तान, आपको पता है ये बेक प्रोडक्ट के बिजनेस में है, लेकिन कुछ अरसा पहले इसने अपनी बेक प्रोडक्ट्स के साथ साथ स्वीट की प्रोडक्ट्स को भी ऑफर करना, मिठाई भी ऑफर करना शुरू कर दी। अब उसी पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट के साथ, उसी पर्टिकुलर रिसोर्सेज के साथ जिससे ये बेकरी प्रोडक्ट बनाते थे, उसी से इन्होंने मिठाई भी बनाना शुरू कर दी। जब एक फर्म इस तरह की स्ट्रेटजी को परसू करती है कि वो नई प्रोडक्ट्स तो ऑफर करना शुरू करती है लेकिन वो उसकी प्रीवियस ऑफरिंग से रिलेटेड होती है, तो वी कॉल इट द कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी। इसके साथ हमने कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी भी डिस्कस की थी, जो कि इस पर्टिकुलर सब कैटेगरी की सेकंड ग्रोथ स्ट्रेटजी है। इसमें ऑर्गेनाइजेशन नई प्रोडक्ट्स ऐड करती है अपनी ऑफरिंग में, बट वो अनरिलेटेड होती हैं और ये नई मार्केट्स के लिए होती हैं। तीसरी और आखिरी जो हमारी इस पर्टिकुलर सेट में फाइनल स्ट्रेटजी है डियर स्टूडेंट, दैट वाज अवेलेबल विद द टाइटल ऑफ आवर हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी, in which organization started offering new products but unrelated one to its existing customers। कि आप नई प्रोडक्ट तो ऐड कर रहे हैं और वो अनरिलेटेड भी है, बट दैट इज स्टिल फॉर योर एग्जिस्टिंग कस्टमर्स। आप किसी नई कस्टमर्स के लिए वो प्रोडक्ट नहीं लेके आ सकते।
थैंक यू रियली वेरी मच डियर स्टूडेंट्स। ये ग्रोथ ग्रुप ऑफ स्ट्रेटजीज हमारा पूरा हो गया। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिफेंसिव ग्रुप ऑफ स्ट्रेटजीज पे बात करेंगे, जो कि माइकल पोर्टर की जेनेरिक स्ट्रेटजीज से ही ली गई हुई हैं। इंशाल्लाह वो हमारे लिए भी बहुत मीनिंगफुल और आसान होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।